Okay, a very good morning to all of you children. Today we are going to start up chapter number 7. The name of the chapter is Origin of Transactions, Source Document. Basically, what we are going to study? We are going to study about source documents. Now, what are these source documents? If you remember, while discussing accounting procedure, I have told you that the first step in the process of accounting is to identify the financial transactions. You remember? सबसे पहला step हमने किया था measuring and identification of transaction. तो transaction को identify कैसे करेंगे? How do I come to know that how much sales has been taken place? How do I come to know that how much purchase has been taken place? So whatever transaction you want to write, ये हमने एक accounting principle भी पढ़ा था. If you remember accounting principle, the name of the principle was verifiability or objectivity. That principle says only those transactions will be recorded in the books of accounts which are supported with the valid proof or some accounting document or some source document. So those documents all together are called as source document. Why source document? Because they are a source of information to the business. How do I come to know that this transaction has taken place? With the help of the source document. Now document nahi hai, documents hai. It means there are number of documents which can be there, which will help me to record the transactions, right? First of all, the first and very common source document. आपको पहले मीनिंग क्लियर हो गया ना बेटे सबको? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जो अकाउंट्स में हमें सपोर्टेड वाउचर्स, हमारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि दिस ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एंड फॉर व्हाट अमाउंट, उसकी मेजरिंग, हाउ मच द अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन. ठीक है. फर्स्ट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट इज कैश मेमो. कैश मेमो आपने बड़ी बार इसको देखा होगा, इस सोर्स डॉक्यूमेंट को, लेकिन यू नेवर नो कि इसको हम कैश मेमो कहते हैं. What is a cash memo? Cash memo basically is a document which is provided by the seller to the buyer at the time of purchase of goods for cash. For example, कोई एक बच्चा ले लो, Jaskaran. Jaskaran is a child in your class. He has been to a stationery shop and purchased +1 की सारी books खरीद ली and notebooks भी खरीद. And at the end of the all this shopping and all that stuff, the shopkeeper provides a bill sort of thing to the to Jaskaran कि Jaskaran तुम्हारे 1250 rupees हो गए, for example. तो Jaskaran is saying okay 1250 rupees, अंकल इसका बिल दे दो. मेरी मम्मी पूछेगी ना घर जाके कि कितने की बुक्स आई, or in case I need to return some books or I need to exchange something, so in that situation we need bill. So that is a bill जिसको हम bill कहते हैं एक layman language में. Basically it is not a bill, it is cash memo. Why it is cash memo? Because for the purchase of those goods you have paid cash. Got it? You have paid cash for those transactions, for those items. So the bill or the piece of paper which you are receiving from that person, it is cash memo. Clear? Now what will be written on that cash memo? उस पे क्या लिखा होता है? अगर आपने जो किताबें ली तो उस पे लिखा होगा, for example 5 notebooks, 3 pens, 2 pencils, 4 books, diary, whatever. So whatever stuff you are purchasing, it will be mentioned on that piece of paper कि this quantity for this rate. 30 rupees के 4 register लिए, 20 rupees के 2 register लिए, 5 rupees के 5 पेन लिए, 10 rupees वाले 10 pens लिए, like that. So it will be the name of the item means in the particular and the quantity कितनी ली and the rate of per item that will be written and then उसका total आपको करके दिया जाएगा. That is a cash memo. It is very well prepared on your book also. Book में एक दिया हुआ इन्होंने example के लिए. You can check into the book page number 7.2 पे. Specimen of cash memo.
Now this is a cash memo given by Chhabra Silk and Sarees. कोई दुकान होगी जहाँ पे silk and sarees के नाम से suits and sarees they may be selling. Now the description you can see the quantity sarees. Sarees are being purchased 10 sarees. The rate of one saree was 1,000 rupees. So the total became 10,000. Then shawls. 4 shawls were being purchased. The rate of one shawl was 1,000. So the total becomes 4,000. And this grand total of the whole bill or the whole cash memo becomes 14,000. Now this 14,000 की sale हुई किस date को हुई? Date is also mentioned ऊपर February 3, 2020 की date दी हुई है. तो name of the purchaser is not given. आपने कभी भी देखा होगा आप कोई दुकान से सामान लेते हो, दुकानदार साइन करके अमाउंट लिख के सामान लिख के दे देता है, उस पर कभी आपका नाम नहीं लिखता कि किसके नाम से बिल हम जनरली उन चीजों के लिए बनाते हैं आपके नाम से जहां पे फॉर एग्जांपल देयर इज अ नीड ऑफ गारंटी और वारंटी लॉन्ग रन में, जैसे टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, ऐसी कोई चीज wherein you can claim the warranty or guarantee. That is the situation where the bill or cash memo is being prepared on the name of the buyer. Otherwise, generally, when we are going to the store purchasing something, वो एक bill बनाते हैं, उस पे आपका नाम नहीं mention होता. It means whosoever can go back to the shop with the bill and they can get something replaced or returned or whatever you want. Got it? Is cash memo clear to all of you? Have you ever seen this kind of piece of paper? जिसकी मैंने example दी, देखा है ना सबने? Yes or no? You can raise your hand, बेटे, so that I should come to know that you are listening. Okay. So एक दो बच्चों ने देखा भी है. Okay. It happens in malls also. जहाँ भी हम जाते हैं ड्राइव थ्रू से भी, या ये अगर किसी चेन स्टोर पे जाते हैं कुछ खाने के लिए, वहां पे भी आपको एक बिल मिलता है, पैसे पे कर देते हो. मॉल्स में जाते हो कुछ परचेज करते हो, बिल मिलता है, पैसे पे कर देते हो, जिसको हम बिल बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में. बेसिकली दैट इज अ कैश मेमो wherein the description of the item and the quantity is being given along with the amount and you are paying cash for the same. Okay, that's all right. Number two is bill or invoice. Basically now you should know what is the bill or invoice. Basically what we used to do, हम कैश मेमो को ही बिल बोलते रहते हैं. दुकानदार हमें कैश मेमो देता है, हम उसको कहते हैं बिल मिल गया. But basically it is not a bill. What is a bill? Bill is something which is also called as invoice. Invoice is a piece of paper. मैं ब्रैकेट में यहाँ लिख रही हूँ आपके रेफरेंस के लिए. जब कोई कैश पे ट्रांजैक्शन होती है तो कैश मेमो मिलता है. जब कोई क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन होती है तो इनवॉइस या बिल इशू किया जाता है. नाउ व्हाट डज इट मींस? फॉर एग्जांपल, you have ordered something online and you have not paid money for the same. ठीक है, आपने कुछ ऑनलाइन मनी सामान मंगवाया and you have not paid. You have opted for cash on delivery. So now आपने ये देखा होगा definitely, but you have never noticed. आपके पास इतना सा एक पार्सल आया, उस पार्सल के ऊपर एक व्हाइट कलर का पेपर चिपका होता है, सेलो टेप लगाई होती चारों तरफ, उसके ऊपर लिखा होता है इनवॉइस और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दी होती है कि उस पैकेज के अंदर व्हाट ऑल आइटम्स आर देयर. उसके अंदर आपके 2 टी-शर्ट्स हैं, 1 पैंट है और व्हाटएवर एग्जांपल ली मैंने. At that time the piece of paper which is pasted over that carton, it is called as invoice or bill. Why it is called as invoice or bill? It is a piece of paper which is prepared at the time of credit purchase. Credit purchase means the money is not being paid at the time of purchase. It will be paid later on. ठीक है, जब आपने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर किया तो जिस भी सप्लायर ने आपको गुड्स भेजे उसके पास तो पैसे बाद में जाएंगे ना. When आपको डिलीवरी होगी आप कैश दोगे, then that cash will go to that supplier. समझ गए? For the time being वो आपकी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन चल रही है in the books of supplier. जिसने गुड्स बेचे उसके लिए वो क्रेडिट पे बेचे because he has not received money. So in that case the piece of paper which is being prepared by the supplier, it is called as invoice.
और बिल, ठीक है। यहाँ पे जनरली बड़ा कम होता है कि हम क्रेडिट पे कुछ गुड्स खरीदते हैं, बट इट इज वेरी कॉमन इन बिजनेसेस जहाँ पे रॉ मटेरियल्स आर बीइंग परचेज्ड बाय वन बिजनेसमैन फ्रॉम द अदर, supplies are being provided from one businessman to other. In that case, most of the time the transactions are on credit basis. वो कहता तुम raw material supply कर दो, थोड़ा advance ले लो, बाकी पैसा goods बन के बिकने के बाद दे देंगे. So for the time being, when the supplier is providing supply to us, he will be preparing a piece of paper, providing a bill to us, and that bill or piece of paper is called as invoice. Is it clear, bete? Clear? इसके अंदर कैसे लिखा होगा? द सेम वे जैसा कैश मेमो में होता है वैसा इसमें होता है. द ओनली डिफरेंस इज कैश मेमो में कैश पे हो गया होता है, इसमें पे नहीं हुआ है. यू कैन अगेन हैव अ लुक एट द बुक. यहाँ पे आपको फॉर्मेट गिवन है. सबसे ऊपर नेम दिया है इनवॉइस, मॉडर्न इलेक्ट्रिक सप्लायर्स लिमिटेड. देखो ही इज अ सप्लायर, ही प्रोवाइड्स यू सप्लाईज ऑफ इलेक्ट्रिकल आइटम्स. नाउ दिस शुड बी लाइक, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए. इनवॉइस हमने गुड्स क्रेडिट पे किसको दिए? द नेम ऑफ द बायर विल बी डेफिनेटली मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस. ऐसा नहीं हो सकता कि हमने नाम लिखा ही ना. ऐसा हो सकता है? बिकॉज दिस इज कंपल्सरी, इट इज रिक्वायर्ड. हमने पैसे किससे लेने हैं? गुड्स किसको बेची? सो वी नीड टू कीप इट इन माइंड दैट हु इज द बायर. जब हमें कैश रिसीव हो गया तो XYZ किसी ने भी लिया, इट डजंट मैटर टू अस. We have sold goods, we got money. It doesn't matter who has purchased XYZ ABC. But here we are supposed to get money. कल को पैसे नहीं मिलेंगे, हमने उसको पकड़ना है, उस पे केस करना है, कोर्ट में लेके जाना है. So we should know who is the buyer, like who purchases goods from me. So that is the reason why on invoice सबसे ऊपर देखिए ideal customer. Ideal customer उन्होंने एक एग्जाम्पल लिए XYZ, तो नाम कोई नहीं पता तो आइडियल लिख दिया. तो एक आइडियल कस्टमर के नाम से बंदा है जिसको हमने गुड्स बेचे, उसका एड्रेस भी साथ में लिखा है. इफ ही इज अ बिजनेसमैन, द एड्रेस एंड नेम ऑफ द बिजनेस इज मेंशन्ड. आफ्टरवर्ड्स क्वांटिटी, व्हाट ऑल आई हैव प्रोवाइडेड. रेफ्रिजरेटर दो हमने उसको दिए हैं 167 लीटर वाले. वन रेफ्रिजरेटर वाज कॉस्टिंग 8000, सो द टोटल ऑफ रेफ्रिजरेटर बिकेम 16000. देन 10 ऑटोमेटेड आयंस, हमने उसको आयन दिए 10. 1100 की एक है, 11000 टोटल हो गया. एंड द टोटल ऑफ द बिल बिकेम 27000 व्हिच आई हैव प्रोवाइडेड टू द. कोई एक हो सकती है शॉपकीपर ही हो, इतनी सारी आयंस कोई घर पे तो रखेगा नहीं, तो ही मे बी अ रिटेलर और अ शॉपकीपर हु इज सेलिंग ऑल दीस आइटम्स. सो वी हैव प्रोवाइडेड सप्लाई टू दिस पर्सन, ही विल सेल एंड देन गिव इट बैक टू अस, लाइक मनी हमें दे देगा. So for the time being, the document which is being purchased, prepared, is called as invoice or bill. एक बार read कर लेते हैं book से. An invoice or bill is prepared by the seller when the goods are sold on credit. As easy as that. Clear है बेटे आपको? Is it clear? कोई भी कैश में ट्रांजैक्शन होगी तो कैश मेमो, क्रेडिट में ट्रांजैक्शन होगी तो इनवॉइस और बिल. उसके बाद थर्ड हमारे पास जो टाइप है of source document, that is receipt. Now any one of you, have you ever seen this, जिसको हम रिसीट बोलते हैं, जनरली रिसिप्ट बोलते हैं लोग, उसको रिसीट भी कहा जाता है. ओके हरमन, यस हरमन. यस मैम, मैंने देखी. जैसे वो कई आते होते ना रिसिप्ट काटने, जैसे कि हमने लंगर लगाना है, वो उसमें वो ऐसे एक बार रिसिप्ट देख के गए थे. बेटे प्लीज एक बार रिपीट करना, आई डोंट हियर यू प्रॉपर्ली. जो जैसे आते होते हैं ना कि हाँ वो कहते होते कि हमने लंगर लगाना है और उसकी रिसिप्ट लेकर देकर गए थे. यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. व्हाट इज अ रिसिप्ट बेटे? बेसिकली रिसिप्ट होती है कोई भी एक ट्रांजैक्शन जिसमें वन पार्टी इज गिविंग मनी टू द अदर पार्टी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी गुड्स. ठीक है, क्योंकि अगर मैंने किसी को पैसे दिए और गुड्स लिए फिर तो कैश मेमो बन जाएगा, वो तो कैश मेमो हो जाएगा. अगर मैंने पैसे दिए और कुछ भी विजिबल आइटम्स नहीं आई बदले में, that is the piece of paper which is being given, is called as receipt.
It may be for services. For example, any one of your father is coming to school and paying school fee. In return of the school fee, school वालों ने receive कर ली, बदले में क्या दिया? No goods are being transferred to you. कोई चीज तो दे नहीं रहे तुमको. So what they will give you in return? Proof of that money, that we have received money from you. The proof is given in the piece of a paper, in the form of a paper, and it is called as receipt. क्या बोलते हैं उसको? Receipt. It looks something like this. आपने देखी होगी थोड़ी इस तरह की receipt होती है और उस पे ऐसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा होता है. जैसे मान लो कि अगर कोई भी एक टेंपल है, मैं नाम नहीं लेती, किसी भी XYZ टेंपल है, तो उस टेंपल का नाम लिख दिया, उसके नीचे लिखते हैं ऐसे रिसीव्ड विद थैंक्स, a sum of rupees, कितने पैसे, अगर मान लो दिख ही नहीं रहा, इस तरह से एक रिसीप्ट आपने देखी होगी, रिसीव्ड विद थैंक्स, ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, रिसीव्ड विद थैंक्स, a sum of rupees. से तुम गए किसी भी टेंपल में, फॉर एग्जांपल गोल्डन टेंपल तुम जाते हो, वहां जाके तुम डोनेशन करते हो. तो जब आप डोनेशन करते हो तो बेटे आपको बदले में, हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं उसको, एक पर्ची देते हैं. वो पर्ची और रिसीट बोलते हैं कई लोग उसको पंजाबी में, इंग्लिश में हम उसको रिसीट बोलते हैं कॉमर्स की लैंग्वेज में. तो वी हैव गिवन से 5000 रुपीस हमने डोनेशन कर दी से गोल्डन टेंपल में, तो वो हमें एक रिसीट देंगे जिसपे लिखा होगा ऊपर गोल्डन टेंपल का नाम और व्हाटएवर टेंपल, देन रिसीट रिसीव्ड विद थैंक्स अ सम ऑफ रुपीस 5000 फ्रॉम, आपका नाम, किससे पैसे मिले, फॉर एग्जांपल मिस्टर जसप्रीत सिंह या सरदार जसप्रीत सिंह, व्हाटएवर आपका नाम है आपने लिख दिया, और नीचे उनका एक कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर जो भी होगा उसके सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, ठीक है. और यहाँ पे डेट लिखी जाती है, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाता है, और ये सेम अमाउंट जो यहाँ लिखा है उसको यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स में भी लिखा होता है. इस तरह की स्लिप आपने देखी होगी जब भी आपने कहीं डोनेशन की है. व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स यू आर गिविंग मनी एंड इन रिटर्न यू आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग विजिबल. इनविजिबल हो सकता है, जैसे स्कूल में व्हेन यू आर पेइंग द फी यू आर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम द टीचर्स व्हिच इज नॉट विजिबल, इनविजिबल सर्विसेज आर देयर. सिमिलरली आप गुरुद्वारा साहिब में या किसी भी टेंपल में जाके पैसे देते हो डोनेशन, तो बदले में आप विजिबल कुछ नहीं लेते हो, बट यू आर गेटिंग ब्लेसिंग्स और फॉर योर सेल्फ सेटिस्फेक्शन व्हाटएवर यू, जो आपकी सोच हो उसके अकॉर्डिंगली. तो दैट इज कॉल्ड एज अ रिसीट. रिसीट अब ये भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक आइडियल कस्टमर ने 27,000 के गुड्स लिए थे. अब उस आइडियल कस्टमर ने अपने सप्लायर को 27,000 रुपीज दे दिए, तो सप्लायर विल गिव receipt of 27,000 to ideal customer कि okay you have given me this amount so I have received. This is basically the proof of transfer of money from one party to other. पैसे दे दिए हैं उसका proof. ध्यान में बेटे इसको मैं इरेज कर रही हूँ. यहाँ पे it is written in the book. आप बुक में एग्जांपल देख लो. सॉरी, इन्होंने सेम एग्जांपल दी है. That received with thanks from ideal customer a sum of 27. उसने पूरे 27,000 दे दी, but he has not given in the form of cash. He is given in the form of check. So check or cash, whatever receipt will be there that we have received the money, so that will be written. Next type of forged document is pay in slip. Paying slip बेटे all of you must have seen. आज नहीं तो कल, मतलब once or twice or maybe many times. All of you, I believe this. आप में से हर कोई बच्चा बैंक गया होगा. ऐसा कोई बच्चा है आपकी क्लास में who has never visited a bank? Please raise your hand. Any one of you who has never ever visited a bank? जो कभी बैंक ही नहीं गया बच्चा.
ऐसा कोई बच्चा हो आप में? नो. So all of you have been to bank. So in case we are going to bank to deposit some money, अगर हम पैसा डिपॉजिट करवाते हैं कैश, so what we are supposed to do, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास 1 लाख रुपए कैश है, you want to deposit it in the bank, so what you will do, जाओगे काउंटर पे रख दोगे, ये लो 1 लाख रख लो, ऐसा तो नहीं होगा. You will go and tell them this is 1 lakh rupees, this is to be deposited in this account. हो सकता है आपकी फैमिली में 4 अकाउंट हो, उनको क्या पता किस अकाउंट में पैसे डालने हैं वो 1 लाख रुपए. बैंक पीपल विल नॉट बी एबल टू लाइक make any transaction in case you are not giving them the complete information. So what bank requires, बैंक हमें एक ऐसे स्लिप देता है, ज्यादा बड़ी लग रही है, उसका जो एक पार्ट होता है ना ऐसे होता है इस तरह से, उसको हम ऐसे टीयर करते हैं, ये वाला पार्ट जो है बैंक वाले रख लेते हैं, ये वाला पार्ट एज एन एक्नॉलेजमेंट हमें वापस मिल जाता है. और इसमें हम क्या मेंशन करते हैं, यहाँ पे मेंशन करते हैं नेम ऑफ द पर्सन, जो भी उसका नाम है. सबसे ऊपर तो अकाउंट नंबर होता है, ऐसे बॉक्सेस बने होते हैं, आपने देखा होगा इस तरह से बॉक्सेस बने होते हैं. तो उन बॉक्सेस में आपने अकाउंट नंबर लिखना है 1 2 3 4 5 6, जो भी आपका अकाउंट नंबर है आपने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया, नीचे नाम लिख दिया. कई बार क्या होता है गलती से अकाउंट नंबर गलत हो गया, लिख दिया, तो नेम होगा नीचे. तो बैंक वाले पैसे डिपॉजिट करने से पहले वेरीफाई करते हैं कि जिसका नाम है और उसका अकाउंट नंबर करेक्ट है कि नहीं है. नीचे 1 2 3 4 ये नाम किसका है, दिस इज द नेम ऑफ सतपाल सिंह. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बंदा है तो इसका नाम है सतपाल सिंह और उसने अपना अकाउंट नंबर लिख दिया और नीचे उसने नाम लिख दिया, अमाउंट लिख दिया, हाउ मच मनी he want to deposit. For example 1 lakh rupees he want to deposit in the bank. ठीक है, a sum of rupees, और यही सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी लिखी होगी, अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द पर्सन एंड अमाउंट. ये मेन है, बाकी और भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, एड्रेस होता है, फोन नंबर होता है, सिग्नेचर होती है, डेट होती है एंड एड्रेस ऑफ द बैंक. सो मेनी थिंग्स आर देयर. मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता दिया. बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे कैश भी ले लेंगे, ये स्लिप भी ले लेंगे, फिर इसको यहाँ से क्लियर करेंगे. दिस पार्ट इट विल बी टीयर अपार्ट, दिस पार्ट विल बी गिवन टू द कस्टमर एंड दिस पार्ट विल बी केप्ट विद द बैंक ओनली. इसको बैंक अपने पास रख लेगा, ये वाला पार्ट कस्टमर को दे देगा. दिस स्लिप इज कॉल्ड एज पे इन स्लिप. ठीक है, जब हम बैंक जाते हैं, वी यूज्ड टू विजिट बैंक, तो जनरली आई हैव सीन जो लोग कॉमर्स नहीं पढ़ते हैं, दे यूज्ड टू कॉल इट फार्म देना भरना है. बैंक में जाके बोलते फार्म दे दो भरना. तो अब फॉर्म, फार्म मतलब फॉर्म, तो फॉर्म में भी रिलेटेड टू एनीथिंग. तो फिर बैंक वाला बोलते किस चीज का फॉर्म दे दूं, मुझे पैसे जमा कराने उसका फॉर्म दे दो. तो व्हाट आई एक्सपेक्ट एज कॉमर्स स्टूडेंट्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, इन केस यू आर विजिटिंग अ बैंक, you will not ask for a form, you will ask for a pay in slip. वहां जाके बोलना है कि सर पे इन स्लिप दे दीजिए. इन केस मोस्ट ऑफ द टाइम वहां काउंटर होता है, वहां पे सो मेनी पे इन स्लिप्स आर केप्ट लाइन, उन्होंने रखी होती कि जो भी कस्टमर आए खुद ही भरे एंड सबमिट कर दे. इन केस इट इज नॉट देयर, you should note the name of this slip is pay in slip. I repeat, this is a slip which is used by the customer to deposit cash in the bank. Fifth type of document is a withdrawal slip. I'm not sure if it is given in the book or not. Even if it is not given, you should know the names of these documents. This is withdrawal slip. What is withdrawal slip? Withdrawal slip, in case you want to withdraw some money from the bank, तो जाके ऐसे बोलोगे मुझे 5000 रुपए दे दो, वो दे देंगे. They will ask you कौन से अकाउंट से पैसे निकालने हैं. They have to check उस अकाउंट में पैसे हैं भी है कि नहीं. So you have to fill a form. That form is called as withdrawal slip. ये स्लिप भी थोड़ी ऐसी सी होती है, इसके ऊपर 2 पार्ट्स नहीं होते, एक ही पार्ट होता है. इसके ऊपर आप सिंपली अपना नेम, अकाउंट नंबर और अमाउंट वो 3 चीजें लिख के साइन कर देते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पार्ट होता है सिग्नेचर.
अगर तुम्हारे सिग्नेचर मैच नहीं करेंगे इस स्लिप पे, बैंक पीपल विल नेवर गिव यू मनी, ठीक है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बाकी रेस्ट इज सेम, आपका नेम, योर अकाउंट नंबर कितना और अमाउंट कितना चाहिए आपको, बाकी तीन चीजें जो है दैट इज देयर, नेम ऑफ द कस्टमर, अकाउंट होल्डर, देन अकाउंट नंबर एंड द अमाउंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिग्नेचर, सिग्नेचर करेक्ट है, वो मैच करते हैं कि जिस कस्टमर का अकाउंट है उसी के सिग्नेचर है, फेक सिग्नेचर तो नहीं है, तो सिग्नेचर करके and then you can get your money out. Basically this slip has lost its importance from banking transactions because of the introduction of ATMs. कोई जाता ही नहीं बैंक पैसे निकालने, हर बंदा ATM से पैसे निकालता। आज की डेट में only those people go to bank to withdraw money who want to withdraw a large amount of money, because ATM there is a restriction of withdrawal of money, like in one day you can withdraw some, like different for different banks, कहीं 20,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 की लिमिट है, more than that you can't withdraw. So in case you want 2 lakh rupees to pay like that amount to someone, whosoever you want to pay, कोई आपके घर का काम चल रहा है, आपने किसी को पेमेंट करनी है, आपने कोई गाड़ी खरीदनी है और whatever, so you want a big amount, so you have to go to bank, fill in a withdrawal slip and then your signature will be matched and you can withdraw. Or the other type of customer, those who are illiterate, जो ATM यूज नहीं कर सकते, पढ़े लिखे नहीं है, टोटली थंब इंप्रेशन से पैसे निकालते, दे विल गो टू बैंक और अंगूठा लगा के पैसे निकाल के ले आएंगे, बट पढ़े लिखे लोग सब ATM यूज करते हैं। सो दैट इज विड्रॉल स्लिप। इसके बाद नेक्स्ट है सिक्स्थ इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज चेक। आप बोलोगे हमें तो ऑलरेडी पता है चेक क्या होता है, यू ऑल मस्ट हैव सीन चेक्स once or twice. There are different types of checks, वो आपको बताने। Before that, I would like to tell you the way how you have to do this work, this cash memo and all that. You are supposed to make a like assignment, or you can do it in your notebook also. In your school notebook, wherein you are doing the accounting work, you are supposed to write the meaning of, for example, cash memo की meaning लिखा, उसके बाद आपने कोई भी कैश मेमो कहीं से भी लाके यू हैव टू पेस्ट इन योर नोटबुक, आपने वो डॉक्यूमेंट पेस्ट करना है। आई रिक्वेस्ट, मतलब मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, डोंट डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, डोंट डाउनलोड इट फ्रॉम इंटरनेट, बिकॉज जब आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हो वहां पे फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक एग्जाम्पल्स होती है, वहां पे एक आइडिया होता है कि इस तरह का होता है, that is not a true cash memo or true invoice or true receipt, but I want you to paste original documents in your notebook, so that when I will see, I will check your notebook, I'll come to know कि ये आपने खुद से लगाए हैं या आपने डाउनलोड किए। I don't want you to download। पेन स्लिप बैंक जाइए वहां से मिल जाती, तो पैसे नहीं लगते, विड्रॉल स्लिप बैंक जाइए वहां से मिल जाती, रिसीट आपके घर में होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं। Ask your parents when they will go to मंदिर और गुरुद्वारा और wherever they will donate some money, 50-100 रुपए भी देते हैं तो स्लिप मिल जाएगी, so that receipt you will be able to get। बिल और इनवॉइस नहीं मिलता तो this part you can get it downloaded, and cash memo आपके पास, सबके पास, किसी के पास भी मिल सकता है, कहीं से भी कुछ खरीदा उसको बोलो कैश मेमो बना दे, he will make and you will be able to get। then it comes to check। चेक कैसे मिल सकता है? अब आप बोलोगे चेक कहां से लें, तो चेक के लिए आप ये कर सकते हो, एवरीवन्स फादर इज हैविंग अ चेकबुक, सबके घर पे चेकबुक है, पापा चेकबुक देंगे नहीं आपको, वो बोलेंगे मैं अपना चेक भी लिस्ट करूं। यू कैन डू वन थिंग, आप अपने पापा की चेकबुक में से एक चेक फोटो स्टेट करा लो, दैट यू कैन डू। पापा को बोलो पापा एक चेक पे ऐसे अमाउंट भर के या साइन करके या बिना भरे ही आप उस चेक का फोटो स्टेट हमें दे दो। फोटो स्टेट चेक बैंक में लगेगा नहीं, नो वन कैन, मतलब लोगों को ये डर होता है कि हमारा चेक को चुरा ना ले, तो फोटो स्टेटेड चेक इज नॉट वैलिड इन बैंक, सो यू कैन गेट इट फोटो स्टेट एंड देन उसके बाद आप उसमें अमाउंट भर के सिग्नेचर करके, मतलब डेमो के लिए अपनी नोटबुक में पेस्ट करेंगे। गॉट इट? सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग इन द क्लास, you are supposed to write the meaning of the same in your notebook. Along with this, you are supposed to paste the documents in the notebook and paste in it nicely. Okay,
चलिए, so let's come to check now. What is the meaning of check? Check सबने देखा. Check is a document which is being used by one customer of the bank to pay amount to someone else. For example, if I have to pay you 50,000 rupees to Akanksha and I don't want to give it in cash. मुझे लगता है कि कैश में निकाल लूं, फिर पे करूं, फिर आकांक्षा को भी तो बैंक में जमा कराना है, तो बेटर है कि मैं इसको चेक दे दूं. और कैश में मतलब काउंटिंग की मिस्टेक हो सकती है, नोट करेंसी नोट डुप्लीकेट हो सकते हैं, चोरी हो सकती है, मतलब कल को आकांक्षा मना कर दे मैंने पैसे लिए नहीं, तो इट विल बी एज अ प्रूफ इन द बैंक दैट इतना अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम माय अकाउंट एंड एडेड टू आकांक्षा's account. So to keep a valid record of the transaction, what we will do, we will prefer giving it a check. Got it? Now there are two check. समझ आ गया सबको? You all know. Self वो भी check होता है, अपने नाम से बंदा काटता है. It is used sometimes in place of withdrawal slip to withdraw money from the bank. खुद से ही check अपने लिए पैसे निकालने के लिए भी sometimes people use check. But चलिए इसको रब कर दो. So now I am going to explain you two different types of check. Checks can be, it can be bearer check, it can be crossed check. Other than this, there are many other types: travelers check, bankers check, but वो हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं. और यू कैन टेक इट एज होमवर्क. डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स आपकी बुक में, आई एम नॉट श्योर इट इज गिवन और नॉट. यू कैन सर्च इट ऑनलाइन, स्टडी अबाउट इट, एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस द सेम. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक्स व्हिच आर अवेलेबल. ठीक है, ये तो दो ही लिखे. अदर देन दिस देयर आर मेनी अदर टाइप्स आल्सो. 4-5 टाइप्स के चेक्स होते हैं. You will do it on your own and let me know tomorrow, and then we will discuss कि आपको समझ आ गया है कि नहीं. ठीक है, checks और उसके types आप कल करेंगे. I hope the top points which we have discussed today, you all are clear with that. We are running short of time, so I would like to end up today's topic here. We will discuss it tomorrow and do this homework. Anyone is having any doubt now, you can ask me.